Hello, student. Welcome to this session. We are going to solve 10 questions of logical reasoning that were present in the XGMT 2026 exam one by one. And I hope you enjoy the session for the simple reason because these questions are memory based and I have created the options using the AI. So some of the options will not look as good as it was in the exam. Logical reasoning sections came very, very easy, but it was hidden within the section. So inside the section, VALR, there were two subsections, VA and LR, consisting of 20 questions and 15 questions respectively. There were a few questions from coding decoding, a few questions from series, bullet relation, input output, logical sequence, but all of the questions could be solved maybe within a span of 10 minutes. Total time given in this section was around 40, 20, 30 minutes. Okay. So let's see, try and solve the question. This question I just solved by looking at the positioning. See, this L is positioned in the first, which has gone to the L, which is positioned in the second last. Okay. So similarly, it has happened in the case of words. Okay. So W is here and then went to the second last. And similarly, last word R has come to the third place. Last word S has come to the third place and so on. So my correct option was this. I did not take much time and the question was actually easy. In the similar fashion, we had this question, the below one. Again, I took the help of the positioning. That means B first has gone to the second. Similarly, draft D has gone to the second. Then E, which was in the second place, gone to the fourth. So R has gone to the fourth and so on. तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया. आप खुद ट्राई करें एंड आई होप यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. This question took a bit of time and I need to solve this again. Why? Because what did I find that this was like ration, R-A-T-I-O-N somehow, and then nitrification may be A-T-I-O-N. So A-T-I-O-N. Here also A-T-I-O-N. So what has happened that शुरू के जो 4-5 letters है Q, Q, J, G, Z वो same थे. And look at the options. Okay, it was there also. It was same. So there's no point what is happening with this, right? Now, उसके बाद क्या किया मैंने, that concentration, right? First look at the first letter concentration and reverse this, MLX, reverse this. So CON and then MLX, right? उल्टा लिखो ना, XML. हाँ, CON vis-a-vis XLM. So आप देखोगे C जो है that is in the alphabetical order, that is coming from the C is coming from the you can say third and XYZ, this is also third, right? तो इस तरह से यहां देखा मैंने O की क्या पोजीशनिंग है, O की पोजीशनिंग 15 है, इसकी पोजीशनिंग जो है वो 14 है, राइट? तो वो जो चेंज हुआ है वो बिल्कुल वैसा ही हुआ, यानी कि अगर आप लेफ्ट और राइट से देखेंगे तो उसमें भी पोजीशनिंग चेंज हुई. सो दे हैव ट्रीटेड CON डिफरेंटली. उसी रूल के हिसाब से हमें NI10 को भी ट्रीट करना होगा. और ये जो NIT जो हमें देगा, NIT जो हमें देगा नाइट्रिफिकेशन का, दैट विल गिव यू द हिंट कि हमारा आंसर क्या आने वाला है. ठीक है. सो C का जो पोजीशनिंग है वो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, और उस तरह से N की जो पोजीशनिंग होगी वो शायद 14 फ्रॉम द लेफ्ट है. सो 14 फ्रॉम द राइट आओगे तो वो 12 या 13 नंबर आएगा. ठीक है. तो उसका जो चेंज वर्जन आएगा वो M आ जाएगा. ठीक है. इस तरह से हम जो है आंसर इसका निकालेंगे. देखिए, इसको तरीके से लिखने से ना बिल्कुल समझ में आ रहा है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, कॉन्सेंट्रेशन का जो कोडेड वर्ड है ना उसको रिवर्स में लिखा, XLM DGQ TR, उसके बाद नहीं लिखा क्योंकि फायदा नहीं था. तो C और X का रिश्ता क्या है देखेंगे आप. तो C इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, X इज थर्ड फ्रॉम द राइट. O जहां पे भी आप देखेंगे जितना ही पोजीशन में 10 में 9 में, उस हिसाब से यहां से L भी उसी तरह से है. ठीक है. IJKLO 15 में अगर है तो L भी उधर से 15 में आएगा. उस तरह से N और M का वही रिलेशन है कि पोजीशनिंग जो है लेफ्ट से राइट से सेम की गई है. तो सिमिलरली नाइट्रिफिकेशन को अगर आप देखेंगे, नाइट्रिफिकेशन को आप देखेंगे तो N की जो पोजीशनिंग है, ठीक है, उसके हिसाब से कौन आ रहा है.
है ना। आर की जो पोजीशन है उस हिसाब से कौन आ रहा है। फिर बीच में जो CEN किया गया कॉन्सेंट, इसमें देखेंगे सी में +1 किया गया है, जबकि EFG में +2, IJKLMNNOPQ +3 किया गया है। फिर T और G में आप देखेंगे तो पोजीशनिंग शायद इसकी 20th है, इसकी 7 है, ऐड करके 27 आ रहा है। R और I को देखेंगे तो इसकी पोजीशनिंग भी वैसे इसकी 9 है और इसकी जो है वो 18 है, ऐड के 27 आ रहा है। इसी लॉजिक से अगर आप नाइट्रिफिकेशन का कुछ भी निकाल लें, ठीक है ना, तो NIT की पोजीशनिंग कितनी अभी हमने देखी 20th है, तो अगर आप उधर से 20th चलेंगे तो फिर क्या होगा, है ना, उसको देख लीजिए। तो बीच में कुछ जगह पोजीशनिंग हुई, बाकी यहां तो बिल्कुल सही कि मान लीजिए एन आपने जहां भी देखा, अगर आप उल्टा तक चलेंगे तो वहां पे एम आ जाएगा, आई के जगह पे आर आ जाएगा, है ना, और फिर से टी की जगह पे जो है फिर से टी की जगह पे वो जी आ जाएगा। तो MRG का उल्टा क्या होता है, GRM, है ना। तो इस तरह से बनेगा। तो शुरू के 3 का अलग ट्रीटमेंट है। नाइट्रिफिकेशन फिर क्या बचा, RIF, RIF। तो आर के बाद क्या आता है, RS आता है, +1 कीजिए। आई के बाद IJK आता है, फिर आप K कीजिए। फिर यहाँ पे FGHI आता है, I कीजिए, है ना, +1 +2 +3। तो आपको मोटा मोटा हिंट मिल जाएगा कि पहले आप M लिखेंगे, फिर उल्टा R लिखेंगे, फिर आप G लिखेंगे, उसके बाद S लिखेंगे, फिर K और फिर I। और उधर का आपने देखा था ऑलरेडी कि QQJGZ सब सेम था। तो MRGSKI, है ना, MRGSKI। तो ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। शुरू के जो 3 वर्ड हैं, शुरू के जो 3 लेटर्स हैं कौन के, उसको लेफ्ट राइट वाला लॉजिक रखा गया, उसके बाद CEN को बढ़ाया गया, है ना, फिर बाद में फिर से वही लेफ्ट राइट लॉजिक लगाया गया। सो एग्जाम में बिल्कुल ऑप्शन देके फटाफट बन रहा था। क्वेश्चन को आप लोग खुद वीडियो रोक करके सॉल्व करने की पहले कोशिश करें। परवेयर, ओके, सो PURVER, परवेयर, ठीक है। इसको उल्टा करते हैं तो RSTTGWPQ। तो आप देखेंगे PQR +1 किया गया है ना, PQR +2 किया गया, STU -2 किया गया, RST +2 किया गया, TUV -2 किया गया, सो ऑन। तो जब आप इनफॉर्मली को लेकर चलेंगे तो I के बाद J छोड़ के K, यहां पे L, FGH यहां पे H, GHI यहां पे G, ठीक है। तो उल्टा चलेंगे तो आप देखेंगे KLHG होना चाहिए आंसर में। सो दिस इज योर आंसर। और वॉट एवर यू आर बेटर देन मी इन रीजनिंग, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन मच बेटर देन आई कैन डू। सो माई पर्पज वॉज टू रिक्रिएट द क्वेश्चन along with the options, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, परवेयर वाला, +2 -2 was the logic, I solved it easily। ये सीरीज भी देख करके मैं हैरान था, इसलिए हैरान था क्योंकि मैंने कभी लाइफ में सीरीज के नॉन कैट रीजनिंग को देखा नहीं है, ठीक है। सो इन द एग्जाम व्हाट हैपन, ये यहाँ पे लॉजिक क्या है कि 987 651 98 लगातार कम होता जा, 98765 तक कम हुआ है, फिर 1 2 3 4 5 तक, फिर तो 9876, इसको ऐसे लिखा जाए 9876 और फिर 5 है, फिर 1 2 3 4 5 है, फिर 9876 है, 5 गायब हो गया, फिर 1 2 3 4 5 है, फिर 987 है, 6 गायब हो गया, फिर 1 2 3 4 5 है, फिर 98 है, 7 गायब होना चाहिए, फिर 1 2 3 4 5 होना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन मार्क है तो आंसर आपका 1 होगा। सो दिस इज योर आंसर। ये भी बहुत इजीली सॉल्व हुआ एग्जाम में मेरे से। 9 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर 7 है,
फिर 3 है ना, जोड़े में देखो पेयर्स में, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 5 है। जंक्शन पे एक 5 आ गया जो बीचों बीच का है, उसका पार्टनर नहीं लिखा गया, तो एक ब्लॉक खत्म हो गया। 9 1 8 2 7 3 6 4 5। अब नेक्स्ट में देखो 9 1 है, आराम से देखो, 8 2 है, 7 3 है, सब मैं लिख के लाया था, चौथा बना के चौथा, 7 3 6 है, 4 गायब है, 4 गायब है, और फिर से 5 लिख दिया गया जंक्शन पे। 5 कहाँ है, ये देखिए, सेकंड ब्लॉक खत्म हुआ। थर्ड ब्लॉक देखेंगे, 9 1 है, 8 2 है, 7 3 है, अब 6 भी गायब है, अब 6 भी गायब है, और 5 लिख दिया गया। ये ब्लॉक कहां खत्म हो, यहां खत्म हो। तो अगला क्या एक्सपेक्टेड होगा, अगले में आप 9 1 लिखेंगे, हाँ भैया, 8 2 लिखेंगे, हाँ भैया, 7 लिखेंगे, हाँ भैया, और 3 को गायब कर देंगे, और 6 और 4 तो पहले गायब हो चुका था, है ना। उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, जो जंक्शन था, ब्लॉक खत्म हो, यहाँ 5 आएगा। ये आपका आंसर है। मेरे को यही समझ में आया। ये क्या क्वेश्चन था भैया, आई डोंट नो। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि पहले आपके पास क्या आएगी, है ना, पहले आपके पास एजुकेशन आएगी। भाई मेरे पास पहले इनकम आ जाए तो खैर, तो पहले एजुकेशन आएगी, एजुकेशन आने से आपके पास जॉब आएगा 3 5, उसके बाद जॉब आएगी, जॉब आने पर पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा 3 5 1। ओके, तो ये ऑप्शन मैंने एआई से क्रिएट किया है। तो 3 5 1, 1 के बाद वेल बींग या स्टेटस, तो मुझे लगता है कि पहले वेल बींग होना चाहिए, फिर स्टेटस होना चाहिए। 3 5 1 4 2, 3 5 1 2 4 यहाँ पे है, चूंकि मैंने ऑप्शन क्रिएट किया है। राइट आंसर 3 5 1 4 2 है। वैसे आप डिबेट कर सकते हैं राइट आंसर, क्योंकि मैंने कहा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल एंड सेम क्वेश्चन, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लानिंग। सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है, सबसे पहले प्लानिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, डिजाइनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन होगा। प्लानिंग किया, डिजाइन का, प्रोडक्शन किया, उसके बाद टेस्टिंग करो, फिर टेस्टिंग करके मार्केट में प्रोडक्ट को बेच दो, उसका आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सो 4 5 2 1 3 इस तरह क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मिनी सेकंड्स में बन रहे थे, माइक्रो सेकंड्स में। वहां पर ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन है, चूंकि ऑप्शन पे मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा था मुझे एग्जाम में, बट सारे वही एसएससी वाले पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द यूजुअल ऑर्डर एबीसीडी। अब बोलता है कि ए से जी को हटा दो, टी से जेड तक, यानी ऐसे लिखो, टी यू वी एक्स वाई जेड, ऐसे लिखो। फिर एच आई जे, ऐसे लिखो। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में फिर पी क्यू आर एस टी, डॉट 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 आर एस टी, नहीं टी नहीं लिखूंगा, उसका ए बी सी डी ई एफ जी, समथिंग लाइक दैट। तो बीच में मैंने यहां पे कुछ जे के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसा हटाया है। नाउ बोलता है कि 18th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से चलना है 18th, तो 18th को 29 से माइनस करो तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, प्लस -1 और करो, 8 आएगा। तो 18th लेटर फ्रॉम दैट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आई आएगा। ठीक है, इसकी पोजीशन यहां से कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 उधर से कितना है, 18th 26। ठीक है, और फिर बोलता है थर्ड टू द लेफ्ट, कुछ मैंने मिस किया क्या जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी रिप्लेस हुआ है ना, तो उसकी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वाह परफेक्ट है। तो आई हमारा आ रहा है 18th में। ठीक, उसका थर्ड टू द लेफ्ट, उसका थर्ड, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट, वाई आंसर था, वाई आंसर था। ठीक है, मैंने डबल चेक भी किया घर में आकर के, तो ये वाई आंसर है इसका। सो ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। ये क्या क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन बहुत ही बकवास क्रिएट किए गए हैं बाय दी ग्रॉक, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। इसका मुझे ये याद है कि मून सैटेलाइट, अर्थ प्लैनेट, ब्लड रिलेशन के भी दो क्वेश्चन और थे। उसमें नेहा, नेहा की मम्मी ऐसे करके था, तो उसका बेटा का क्या लगेंगे, तो ग्रैंड सन, पोता या नाती। और एक और क्वेश्चन था, उसमें दो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन थे, दोनों ही आसान थे। तो 10 क्वेश्चन मैंने इसमें कर दिए इस वीडियो में, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वो डीआई के ऊपर होगा, और उसमें ढेर सारी कहानियां और बातचीत होंगी। थैंक यू।